For God is pleased by faith. क्योंकि परमेश्वर विश्वास ही से प्रसन्न होता है। Amen. Your prayers are powerful if they are filled with faith. आपकी प्रार्थनाएं बड़ी शक्तिशाली हैं अगर वो विश्वास से भरी And हैं। how does faith come? विश्वास आता कैसे है? Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. That विश्वास means, आता है सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। इसका मतलब the more word is in your prayer, the more it is soaked with faith. जितना ज्यादा ये वचन आपकी प्रार्थना में होगा उतना आपका प्रार्थना विश्वास से भरा Can होगा। I tell you something? Are you ready? Holy Spirit will only confirm the word of God, not your word. एक बात बता दूं, पवित्र आत्मा केवल परमेश्वर के वचन को सिद्ध साबित करेगा, आपके वचन को नहीं। आपने अपने वचन में कहा, I have come to you मैं आपके पास आया हूं to remind you of your word. आपको आपका वचन याद दिलाने। Not that God forgets. ऐसा नहीं कि परमेश्वर को भूलने की आदत है, God is not schizophrenic. वो भुलक्कड़ नहीं है। But God wants you to come to Him with His word, because God wants you to be filled with His word. परमेश्वर चाहता है आप उसके पास उसके वचन को लेकर आओ ताकि आप उसके वचन से भरे हुए हो। Amen? आमेन। So the Bible now, the Bible says Jesus is the high priest. How many people know this? अब बाइबल कहती है यीशु हमारा महायाजक है। कितने लोग जानते हैं ये बात? And as a priest, He offered Himself for us. और एक याजक होते हुए उसने अपने आप को बलिदान किया हमारे लिए। And the Bible says in Hebrews chapter 1 that He offered one offering forever. इब्रानी 1 में लिखा है उसने एक बलिदान जो हमेशा के लिए है वो दे दिया। So Jesus is not offering Himself anymore. तो यीशु अब दोबारा अपने आप को बलिदान नहीं दे रहा है। But the Bible tells us that the ministry of Jesus is an eternal priesthood. The priesthood of Jesus is an eternal priesthood. लेकिन बाइबल हमें ये सिखाती है कि यीशु की जो महायाजक होना है वो अनंत के लिए है। अब That means He is still offering something in heaven. इसका मतलब वो अभी भी स्वर्ग में कुछ चढ़ा रहा है महायाजक होते हुए। Are you ready? तैयार है? Hallelujah. Hebrews 5:1. इब्रानी 5 उसका 1। For every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God. क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती ठहराया जाता है। That He may offer both gifts and sacrifices for sins. कि वो भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। Now Jesus has already offered sacrifice for sins. अब यीशु ने पहले ही पाप के लिए बलि चढ़ा दिए। But He is still a high priest. अभी भी वो महायाजक है, He's still offering something. अभी भी कुछ तो चढ़ा रहा है। Let's see what He's offering. देखते हैं वो क्या चढ़ा रहा है। Hallelujah. Hebrews 13:15. इब्रानी 13 उसका 15। Let's go to Hebrews 3:1 first. इब्रानी 3 उसका 1 देखते हैं पहले। Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of, what is he's a high priest of? नींद आ गई, सो गए, खड़े हो जाओ। He's the high priest of? इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर ध्यान करो जिसे जो हमारे अंगीकार का महायाजक है। He's the high priest of? वो हमारे अंगीकार का महायाजक है। Oh, hallelujah. That means इसका मतलब when you confess, जब आप वचन की घोषणा Jesus करते takes our confession before the Father. हो, यीशु हमारे अंगीकार को पिता के सामने ले जाता है। But do you know something? पर क्या आप जानते हैं The sacrifice in the Old Testament, if it was with blemish, weak, sick, it cannot be offered as a sacrifice. पुराने नियम में जो बलिदान अगर कमजोर, बीमार या खराब था, भद्दा था, तो वो परमेश्वर के सामने नहीं ले जाया जा सकता था। If you go before God and you confess अगर आप परमेश्वर के सामने जाओ और अंगीकार करो what is contrary to the word, जो उसके वचन के विपरीत है, He cannot take that to the Father. तो यीशु वो अंगीकार पिता के पास नहीं ले जा It सकता। has to be blemishless. उसको धब्बा रहित होना चाहिए। The word of God is blemishless.
परमेश्वर का वचन धब्बा रहित है। The word of God is pure. परमेश्वर का वचन पवित्र है। When you confess the word, जब आप वचन की घोषणा करते हो, Jesus takes it before the Father, यीशु उसको पिता के सामने ले जाते हैं offers it to the Father. और पिता को उसको चढ़ाते And when Father receives it, हैं। और जब पिता उसको ग्रहण करता है, grace is being released, अनुग्रह खोल दिया जाता है, favor is being released, तरफदारी खोल दी जाती strength is being released, है, बल खोल दिया जाता है, gifts are being released. वरदान खोल दिए जाते हैं। That's why it's very powerful that you hold fast to your confession. इसीलिए बहुत शक्तिशाली है कि अपने अंगीकार को पकड़ के रहो। Why does Bible say hold fast? बाइबल क्यों कहती है अपने अंगीकार को थामे रहो? Because it's very easy to let go of our confession. क्योंकि बड़ा ही आसान है अपने अंगीकार को छोड़ देना। When you feel that things are not happening, people quickly change. जब ऐसा लगता है कि चीजें नहीं बदलती तो लोग जल्दी से बदल देते हैं अपने शब्द। You know, a man of God once sharing how God showed him, the Lord told him how people receive from the spirit realm. परमेश्वर के एक जन को परमेश्वर दिखा रहे थे कैसे प्रभु के लोग आत्मिक दुनिया से कुछ भी लेते हैं। Whatever you see on this earth already exists in the spirit realm. जो कुछ आप इस पृथ्वी पर देखते हो वो पहले से ही आत्मिक दुनिया में मौजूद है। In fact, this earth, whatever you see, Bible says everything visible came from the invisible. बल्कि ये जो पृथ्वी है बाइबल बताती है जो कुछ दिखाई देता है वो अदृश्य से आया है। And the Lord showed him how there was a woman who was believing for a fridge. और परमेश्वर ने उनको दिखाया कैसे एक स्त्री एक फ्रिज के लिए विश्वास कर रही थी। And she prayed. और वो प्रार्थना कर रही थी। Her pastor taught her, so she went home, opened Mark 11:24. उनके पास्टर ने उनको सिखाया तो वो घर गई, मरकुस 11:24 खोल लिया। She said, Lord Jesus, you said, बोला if प्रभु we यीशु, believe, आपने बोला है अगर मैं मानूंगी, if we believe that we have received it, I will have it. अगर मैं मानूंगी मुझे मिल गया तो मुझे मिल जाएगा, I will have. I तो मैं have. उसको पालूंगी। I thank you, Jesus, for giving me a fridge. धन्यवाद यीशु मुझे फ्रिज And the दे। Lord showed him the moment she prayed like that, instantly an angel was released, and he saw like the angel carrying fridge. और प्रभु ने उनको दिखाया कि जैसे ही उस स्त्री ने ये बोला उसी समय स्वर्गदूत भेज दिया गया फ्रिज लेकर के, फ्रिज उठा करके ला रहा है स्वर्गदूत। But I told you there is always a delay. लेकिन मैंने बताया था हमेशा एक समय देरी का समय होता है बीच में। Otherwise, nobody would need faith, right? नहीं तो किसी को विश्वास की जरूरत नहीं। Otherwise, praying would mean like rubbing Aladdin's lamp. नहीं तो प्रार्थना करना अलादीन के चिराग को घिसने जैसा होगा। प्रभु जी, ओ लॉर्ड, यीशु के नाम में एक फ्रिज इन द नेम ऑफ जीसस फ्रिज। Nobody would need faith. किसी को विश्वास नहीं चाहिए होगा फिर। With faith and patience, they inherited the promises. बाइबल कहती है विश्वास और धीरज के द्वारा उन्होंने वायदे पर कब्जा किया। Amen. So he saw that the angel is bringing fridge towards her. उन्होंने देखा कि स्वर्गदूत फ्रिज लेके आ रहा है उसके पास। And in earthly time, it was more than a week. और पृथ्वी के समय में हफ्ता निकल गया था। And when he saw that the angel just came near her, और जब देखा कि स्वर्गदूत उसके पास पहुंचा, she said, maybe God doesn't want to give me fridge after all. उसने कहा शायद प्रभु मुझे फ्रिज देना ही नहीं चाहता है। And he saw this sadness on angel's और face. उसने देखा उस एंजल के चेहरे पे ऐसी दुख को देखा And he turned back. और वो वापस चला गया। The Bible clearly tells us बाइबल बताती a है double-minded man will receive nothing from God. एक दुचिता व्यक्ति परमेश्वर से कुछ नहीं पाएगा। Nothing. What? Not कुछ नहीं। something, not few things, nothing. कुछ या थोड़ा नहीं, कुछ नहीं पाएगा। What is the sign of a double-minded man? एक दुचिते व्यक्ति का क्या चिन्ह है? You have dual confession. आपके मुंह से दो तरह के अंगीकार होते हैं। And many times people nullify their confession of faith by their confession of unbelief. और कई बार लोग अपने विश्वास के अंगीकार को रद्द कर देते हैं अविश्वास के अंगीकार कर करके। Are you guys with me? Yes. Are you learning something? कुछ सीख रहे हैं? It's very important when you have believed something, you hold on to it. Even if you don't see the answer, keep confessing, keep believing, keep speaking.
बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी बात को मान लेते हैं, उसका अंगीकार करना शुरू करते हैं, तो जब वो नजर नहीं भी आ रहा तब भी बोलते रहे, मानते रहे, बोलते रहे उसको। The Bible says in Daniel chapter 10, Daniel prayed, and after 21 days, an angel came and told him, Daniel, your prayers were heard on the first day. दानियल 10वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, एक स्वर्गदूत दानियल से मिलने आता है। 21वें दिन स्वर्गदूत उसके पास आता है, जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया तब से। और स्वर्गदूत आकर बोलता है कि दानियल, जिस दिन तूने प्रार्थना की तेरे